اذان سے پہلے احمد اپارٹمنٹ آیا پر آگے سے لاک لگا ہوا تھا۔ اس کو تشویش ہوئی۔ احمد نے بجائے لاک کھولنے کے حسان کو کال کی پر آگے اس کی سن کر وہ کافی پریشان ہوا تھا۔ وہ کسی کو میسج کر کر ہاسپٹل روانہ ہوا تھا۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی۔ وہ تینوں ہاسپٹل میں تھے۔ ان کا بھائی بھی چکر لگا گیا تھا۔ وہ مہم کو کافی حوصلہ دیا تھا کہ خالہ ٹھیک ہو جائے گی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ مہم نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ صبا بیگم کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے دماغی شریانوں پر کافی اثر پڑا تھا۔ مسلسل انجیکشن کی وجہ سے وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی جب ڈاکٹر وقفے سے ان کی کنڈیشن چیک کرنے آتے رہے تھے۔ احمد نے بڑے بھائی کی طرح مہم کو سنبھالا ہوا تھا، جبکہ حسان نے بھی کافی حوصلہ دیا تھا۔ وہ مہم کے لیے جوس اور برگر لے کر آیا تھا، اسے زبردستی کھلایا تھا، جبکہ احمد اپنی ناساز طبیعت کی پرواہ کیے بغیر ڈاکٹر سے مل کر ان کی حالت کا دریافت کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مہم کا بہا سہارا بس صبا آنٹی ہے، انہیں اگر کچھ ہو گیا تو مہم کیسے اکیلی رہے گی۔ یہ ساری سوچیں احمد کو پریشان کیے ہوئی تھی۔ دوسری جانب حسان اپنے دوست کی حالت دیکھ کر اسے بہلا رہا تھا۔ تینوں اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، ایک اپنی خالہ کے لیے تو دوسرے دو اس کے لیے۔ وہ جیسے وہاں پہنچے تو فواز صاحب اور زہیب خوش اسلوبی سے ملے، ان کا اچھے سے ویلکم کیا۔ کیا رے میری بنو، تو اتنی لیٹ پہنچا ہے؟ زہیب اس کو سائڈ پر لے گیا تھا اور پوچھا۔ بکواس بند کر ایمی، مجھ سے منہ نہ تڑوا لینا۔ بحران اس کی میری بنو کہنے پر بھڑک اٹھا تھا۔ اچھا چل نا، اب اتنا غصہ نہیں کرتے۔ زہیب اس کی گال کھینچ کر بولا تھا۔ چھوڑ۔ بحران نے اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ کیا خسر پھسر ہو رہی ہے؟ فواز صاحب نے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، وہ یاسر کا پوچھ رہا تھا۔ زہیب نے بہانہ گھڑا کہ کہیں بحران اس کی چولے ہی نہ بتا دے۔ بی جی کو سمرینا بیگم اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ سمیر سومی کا ہاتھ پکڑے مہمانوں سے مل رہا تھا، جبکہ فواز صاحب نے ویٹر سے کہہ کر سمیر کو بلوایا تھا۔ وہ وجاہت صاحب، جواز صاحب، برہان اور زہیب ایک طرف صوفوں پر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ جب سمیر آیا وہ وجاہت صاحب سے ملا، ان کو اچھے سے جانتا تھا۔ جب وجاہت نے برہان سے تعارف کروایا، برہان اور سمیر ایک دوسرے کے گلے ملے اور سب اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ انہیں تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب سمرینا بیگم آئی، اشارے سے بیٹے کو بلایا۔ زہیب ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھا اور اپنی ماں کی جانب چلایا۔ کیا ہوا امی، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بیٹا برات کب کی پہنچ چکی ہے پر دھولا غائب ہے۔ جازب کتنی دیر سے نہیں آیا، پتہ کرو اس کا۔ فواز صاحب کی فیملی پہلے آ گئی تھی کہ انہیں برات کا ویلکم کرنا تھا۔ برات بھی آ چکی تھی پر دھولا نہیں آیا تھا۔ جواز صاحب کا کہنا تھا کہ وہ پیچھے آ رہا، اب گھنٹہ گزر چکا تھا، جازب ابھی تک نہ آیا تھا۔ ماما پریشان نہ ہو، میں ابھی کال کرتا ہوں۔ اس نے کال ملائی پر آگے سے نمبر 1 تھا۔ 2-3 بار کرنے پر آگے سے نمبر پاور آف آ رہا تھا۔ ماما آپ جائیے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ بیٹا جلدی پتہ کرو، زرش بھی کب سے پالر سے آ چکی ہے، کافی عورتیں پوچھ رہی ہیں۔ اوکے ماما آپ جائیں، سنبھالیں ان کو۔ زہیب نے بھیج کر باہر بار کال ملائی تھی پر ایک ہی جواب تھا۔ اب تو اسے بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ جب فواز صاحب اٹھ کر آئے، کیا بات ہے بیٹا، پریشان کی ہو؟ بابا جازب ابھی تک نہیں آیا، تایا سے پوچھے کہاں ہے وہ؟ زہیب نیچی آواز میں بھرم ہوتے بولا۔ اب تو مہمان بھی پوچھ رہے ہیں کہ دھولا کہاں ہے۔ وہ بھی پریشان ہو اٹھے۔ جب جواز صاحب بھی ان کی طرف آئے، بھائی صاحب جاسب کہاں ہے، ابھی تک کیوں نہیں آیا، پتہ کرے اس کا۔ اسے 10 منٹ میں پہنچنے کا کہا تھا، تایا ابو اب گھنٹہ ہو رہا ہے، اس کے 10 منٹ ابھی ہوتے بھی نہیں ہیں۔ زہیب بھی دھاڑا تھا۔ میں گھر دیکھ کر آتا ہوں۔ زہیب بنا کسی کی سنے آندھی طوفان بنا نکلا۔ سب کو پریشانی ہونے لگی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ جواز صاحب کا غصہ شدت اختیار کر چکا تھا، جن کی بدنامی کروانے پر تلا تھا، جبکہ دور بیٹھی شیلا اور اس کی ماں مسکرا کر ان کی پریشانی انجوائے کر رہی تھی۔ انہیں کوئی پریشانی نہ تھی۔ سجلیمان بیڈ روم میں زرش کے ساتھ تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے زرش کے ساتھ پارلر سے آئی تھی، ابھی کمرے میں تھی جب تک زرش کا نکاح نہیں ہو جاتا۔ اسے بھاری لہنگے میں زرش آرام سے کرسی پر بیٹھی تھی پر دل کی حالت ویران تھی۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دل تو بس اپنی محبت کے نہ ملنے پر ماتم کر رہا تھا۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں زیورات سے لدی خوبصورتی سے کیے میک اپ میں وہ آسمان سے اتری حور کر لگ رہی تھی۔ اس پر چھائی چہرے پر اداسی، اور دلہن بن کر چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ سجل نے ریڈ شرٹ اور اسکن کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا۔ ہلکی سی جولری میں بالوں کا میسی جوڑا بنائے میک اپ میں وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ ایمان نے پیروں کو چھوتی ناری کلر کی فراک، چوڑی دار پاجامہ، پاؤں میں فراک کے ساتھ کا کھسا پہنے، اسکن کلر کے سٹالر سے حجاب کر جس پر سرخ رنگ کے موتی لگے تھے۔ فراک کے ساتھ کا دوپٹہ وہ دائیں شانے پر شال کی طرح ٹکائے زرش کے ساتھ بیٹھی معصوم سی پیاری سی لگ رہی تھی۔ مانو جی بھابی، تم زرش کے ساتھ رہو، میں پتہ کر آؤں نکاح میں دیر کیوں ہو رہی ہے۔ نکاح کے نام پر زرش کا دل کر لایا تھا۔
सजल कहती नीचे चली गई थी, ज़रिश की बच्ची आज बोलती क्यों बंद है? बोलो कुछ, नहीं तो मैं जा रही हूँ नीचे। ईमान को तब चढ़ी थी जब से इसने मुंह लटकाए बैठी थी। जाने मन आज मुझसे नहीं बोला जाएगा, ज़रिश उदासी में बोली थी, पर जाने मन बोलना अपनी परेशानी में भी न भूली थी। कुछ नहीं होता, क्यों परेशान हो रही हो, उदास क्यों हो, एक ही घर में रहना है, तुमने कौन सा दूर जाना है। ईमान ने अब की बार दुल्हन बनी ज़रिश को छिड़का था, जब दुल्हन बनूंगी तब पूछूंगी। बड़ी आई मेरी दादी अम्मा। ज़रिश इसकी तरफ परफ्यूम फेंकती बोली थी। वो कैच करती अपने दुल्हन का सुनकर वो झनक गई थी। सजल नीचे आई जब समीर को बाहर जाते देखा। समीर रुकिए। वो पलटा और सामने दुश्मन जाना को देखा। ये हथियारों से लेस खड़ी उलझी हुई सी लगी थी। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे इस कजन को तलाश करने। मतलब? वो अभी तक नहीं आया, बस सुहेब के पीछे जा रहा हूँ। समीर भी इसकी सुने बिना निकल गया था। वक्त काफी बीत चुका था। अब तो सब मेहमान सवाल करने लगे थे कि कितनी देर है, दूल्हा कहाँ है। फवाद साहब काफी परेशान हो रहे थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनको जानने वाले खानदान वाले, ऑफिस के लोग सब मौजूद थे। ऐसे में दूल्हे का गायब होना, जो कि इनका भतीजा था, सबको बातें बनाने जैसा मौका मिल गया था। दूसरी तरफ जहाज साहब और बुरहान खड़े इनको तसल्लियां दे रहे थे। ये लोग तो ऐसे बातें करते हैं, हो सकता है कोई हादसा पेश आ गया हो। फवाद साहब, दूल्हा कहाँ है? आखिर इतनी देर हो गई है, हम सारी रात तो इंतजार नहीं कर सकते, जल्दी बुलवाइए इसे। जबकि जवाद की अपनी हालत काफी खराब हो रही थी। बेटा नहीं आया था, इसकी बदनामी के लिए यही काफी था कि लड़का भाग गया है। वो शादी नहीं करना चाहता, आखिर क्या वजह हो सकती है? जरूर लड़की में खराबी होगी। इस तरह की चीमगोइयां होने लगी। बीजी ने और सजल ने समरीना बेगम को संभाला हुआ था। सब्र करो फवाद, अल्लाह बस दुआ करो। कैसे वजाहत, अब तो ज़हीब समीर को गए हुए भी 2 घंटे हो चुके हैं। फवाद साहब मेहमानों से निकलकर प्राइवेट एरिया जहां वो लोग पहले बैठे हुए थे वहीं आकर ढह से गए थे। इसकी तरफ से मेहमान नहीं थे। घर के सब अफराद इधर नहीं जमा थे। अंकल मैं कॉल करता हूँ, प्लीज परेशान ना हो। हेलो ज़ेबी, कहाँ तुम? यार ढूंढ रहे हैं पर अभी तक जाज़ब का पता नहीं चला। बुरहान ने कॉल बंद कर दी थी। क्या हुआ बेटा? उन्होंने बेसब्री से पूछा। अंकल अभी तक पता नहीं चला। फवाद मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं पता था कि जाज़ब भरी महफिल में यूं रुस्वा करेगा। भाई साहब अब मैं क्या बोलूं, मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी है और आपका बेटा नहीं आया, लोग तो इस पर भी बातें बनाएंगे। फवाद साहब दुख से बोले थे। घर के सब अफराद इसी हिस्से में जमा थे। कौन करेगा ज़रिश से शादी? लोग तो यही कहेंगे कि ताया के बेटे ने नहीं किया निकाह, कुछ तो वजह होगी ना। फवाद साहब भरम हुए थे क्योंकि अब तो 4 घंटे होने को आए थे। फवाद मेरे पास एक हल है। वजह दुरानी ने कहा। कैसा हल? ज़रिश बेटी की शादी होगी पर बुरहान से। फवाद साहब ने जवाब को देखा। अपना नाम सुनकर बुरहान को धचका सा लगा था। मेरा बेटा करेगा शादी? ये जुमला इसके कानों में किसी हथौड़े की तरह लग रहा था। इसने खुद को ज़दलों की ज़द में महसूस किया। मैं कैसे कर सकता हूँ ये शादी डैड? वो हवास बापता रूंधी आवाज में बोला था। इस पर जैसे आसमान टूटा था। ये सुनकर आंखों के सामने किसी का सरापा लहराया था और वो खुद को बिखरता हुआ महसूस कर रहा था। इसका दिल किया अभी भाग जाए यहाँ से। इस पल में इसकी वीरान होती हालत देखकर बीजी तड़प उठी थी। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने बेटा, शादी कर लो, मेरी लाज रख लो, मेरी बेटी को अपना लो, मेरी इज्जत खराब होने से बचा लो। अब की बार इसके अंकल ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। इसे लगा बस अब सब खत्म, जिंदगी खत्म, वो खत्म, मौत कैसा सख्ता छाया था। सबकी नजर इस खूबरू जवान पर टिकी थी जो बाप के साथ शादी अटेंड करने आया था। एक तरफ एक बाप की अपनी बेटी के लिए फरियाद दुहाएं थी, दूसरी तरफ इसकी मोहब्बत थी। इसका दिल जैसे बंद होने को था। वो वह था जो इसकी इज्जत बचा सकता था, जिनको रुसवा होने से बचा सकता था। पर दिल का क्या करता जो मातम कर रहा था, इसकी मोहब्बत के वास्ते दे रहा था। पर अपनी इज्जत बचाने की खातिर फवाद साहब ने बुरहान के सामने हाथ जोड़ दिए थे। हाँ बुरहान बेटा, इस वक्त तुम ही हो जो हमारी इज्जत बचा सकते हैं। जवाद साहब दुख के आलम में बोले थे। बीजी आगे बढ़ी थी। बुत बने खड़े बुरहान का हाथ पकड़कर साइड पर ले गई थी। बुरहान हाँ कर दो, शादी कर लो बेटा। मैं कैसे कर लूं शादी बीजी? आपने तो कहा था आप डैड के साथ ईमान के घर जाएंगी मेरा रिश्ता लेकर, और अब आप भी जानते हो जब भी मेरी इस लड़की से जिंदगी खराब कर रहे हो। बेटा वक्त का तकाजा यही है, शायद तुम्हारा नसीब यहाँ जुड़ा था। मेरे लाल अपनी बीजी की बात मान ले, शादी कर ले, अपने बाप को दोस्ती के इम्तिहान में सुरखरू कर दे। बीजी अगर आज मेरी जगह अहमद आया होता तो क्या वो मान जाता? झल्ला हो गया है, वो अपनी करने वाला है, वो तो हत्थे से उखड़ जाता। अगर वो यहाँ आया भी होता तब भी बजी तुझे बुलवाता। मेरे शहजादे, इसे तुम पर फख्र है। हाँ देख किस मान से वो अपने दोस्त को दिलासा दे रहा है। इसे तुम दोनों पर गरूर है, पर तू बड़ा है, तो वजी को तुझसे उम्मीदें भी ज्यादा हैं।
पुत्र, आज तक तूने कभी मायूस नहीं किया, तो आज भी अपने बाप को मायूस मत कर। इस लड़की को अपना ले बेटा, रब का यही फैसला मान ले। बीजी इसके बाद संवारती समझाने लगी थी। इसका दिल किया कि इसे नोच कर फेंक दूं। आप लोग यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं कर लेता हूँ इससे शादी, पर मेरा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं होगा, ना कोई मुझे इस रिश्ते को निभाने के लिए फोर्स करेगा। बुरहान ने दुख और तसब से अपनी भीगी आंखें हाथ की पुश्त से रगड़ी थी। डैड, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, वो स्पॉट अंदाज में बोला था। यहाँ सबका दिल मुतमईन हुआ था, वहाँ शहला और इसके माँ पहलू बदल कर रह गई थी। सजल इसकी माँ को भी ढास मिली थी जब बुरहान ने हाँ कहा था। वजह सबका सीना फखर से चौड़ा हुआ था कि इनके बेटे ने इसके दोस्त की इज्जत रुस्वा होने से बचा ली। सब बड़ों की मौजूदगी में बुरहान ने 3 बार कबूल किया था। इस दौरान इसका चेहरा मुरझाया हुआ था। सबको अचानक फैसला लेने की वजह लगी थी, पर बीजी असल बात जानती थी। कुछ ही देर में सब बड़े जरिश के रूम में गए थे। जब मौलवी ने निकाह पढ़वाना शुरू किया, जरिश ने बिना गौर किए कबूल है कर लिया। 3 बार कबूल करने के बाद इसकी आंखों से आंसू रवा हो गए थे। इसने बिना गौर किए पेपर पर दस्तखत कर दिए, खुद को किसी और के हवाले कर दिया। आपने जुमला हकूक इसके नाम कर बैठी, जिसे वो जानती नहीं थी, पर अभी शायद वो किस्मत के खेलों से अनजान थी। निकाह के पेपर साइन करते वक्त जरिश बिल्कुल टूट चुकी थी। एक जो आस उम्मीद थी, एक अनजाना सा जज्बा था, एक तसल्ली थी कि वो इस जासब के साथ नहीं जुड़ेगी। फिर निकाह होने के बाद सब कुछ झनाक से टूटा था। वो उम्मीद जो इसके अपने दिल की दिलाई हुई थी, जो इसका मन कह रहा था कि नहीं होगा, ऐसा तसल्ली रखो, जो अनजाना सा जज्बा सर उठाए हुए था, जो आस थी कि इसके घर वाले कहेंगे हम शादी नहीं करेंगे, अभी तो जरिश को पढ़ना है, छोटी है हमारी बेटी, पर नहीं, इसकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। वो सदमे सी की कैफियत में बैठी ये भी न सोच पाई कि निकाह के वक्त इसके दोनों भाई नहीं थे। चलो ईमान, जरिश उठो, कब से मेहमान पूछ रहे हैं। वक्त की किल्लत के बायस सजल जरिश को ये भी न बता पाई कि इसकी शादी जाजब से नहीं, बुरहान दुरानी से हुई है। पर जरिश के ना पूछने पर शायद वो जान गई कि सजल खामोश रही। वो दोनों इससे और इसके लहंगे को थाम कर नीचे ले आई थी। इसके आते ही मूवी मेकर और इनके खानदान की लड़कियां इस तरफ बढ़ी थी। बुरहान चट्टानों जैसी सख्ती लिए वजाहत साहब और बीजी के साथ खड़ा था। बीजी की नजर जरिश पर पड़ी। कुछ लम्हे इस कांच सी गुड़िया को देखा जो अपने वजूद पर इतना भारी ड्रेस पहने कोई जेवरा से लदी हुई नजरें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चली आ रही थी। माशाल्लाह, चांद सी बहू है मेरी। बीजी वहीं खड़े बोली। बुरहान ने मुठियां भेजी। चलो बुरहान बेटा, जाओ अपनी दुल्हन को स्टेज पर चढ़ने में मदद दो। बीजी, बुरहान ने खफकी से देखा। जा मेरा शहजादा बच्चा, उसके सीने पर हाथ रखकर मोहब्बत से ममता समाये लहजे में बोली थी। ना चाहते हुए बुरहान को जाना पड़ा। एकदम से बुरहान आंखों में अजनबियत लिए इसकी तरफ आया था। बाजू से पकड़कर झटका दिया। जरिश का दिल धड़का। एक जाना पहचाना सा लम्स महसूस हुआ। बेसाख्ता दिमाग के पर्दों पर इसके दिन का वाकया लहराया जब वो बहरान से टकराई थी। बुरहान ने बीजी की घूरती आंखों को देखा, फिर सांस खारिज करके इसका हाथ पकड़ा। 1 सेकंड से ऊपर की तरफ खींचा कि वो गिरने से बाल बाल बची। इस हरकत पर जरिश ने इसको देखना चाहा, पर नजरें सीने से वापस लौट आई। वो जो 6 फुट से निकलता कद, कसरती जिस्म, चौड़ा सीना लिए खड़ा था। इसका दिल बेइख्तियार धड़का। कहीं से भी जासब न लगा, क्योंकि इसका जिस्म इतना मजबूत ना था। वो सेहतमंद था, पर ऐसी बॉडी बिल्डर नहीं था जो सामने खड़ा था। बुरहान ने एक सरसरी सी नजर इसको देखा जो सर झुकाई खड़ी थी। वो सही से ना देख पाया कि ये जरिश है, इसकी स्टूडेंट। इसकी मुलाकात ज़हेब और फवाद साहब से ऑफिस या किसी बिजनेस मीटिंग में हो जाती थी। वो ज्यादा पर्सनल नहीं होता था, ना कभी घर आया था। इन दोनों ही को जानता था, पर अब जिस लड़की से शादी हुई थी, इतना पता था कि सामने खड़ी लड़की जेबी की बहन और इसके अंकल की बेटी है। इसको स्टिल देखकर बीजी आगे बढ़ी और जरिश को सोफे पर बैठाया, साथ बुरहान को भी बैठा दिया। ईमान को सजल साइड पर ले गई और सब इसके गोशवार कर दिया। वो तो निकाह में इजाजत की बजाय बुरहान का नाम सुनकर चौंकी थी। इसने गलत सुना। अगर ऐसा होता तो जरिश जरूर कहती कि पर वो तो खामोश थी। पर भाभी के बताने पर वो सामने बैठे इस हैंडसम मगरूर खूबसूरत सी अपने शहजादे जैसे सर को देख रही थी। दोनों की जोड़ी एक साथ जब रही थी। ईमान को खुशी हुई थी कि इतना अच्छा इसका सर इसकी दोस्त का शोहर बना। जाजब इसे भी पसंद नहीं था। सजल भाभी, ये बुरहान सर है। कौन सर? ये हमारे लेक्चरर हैं भाभी। क्या? जी, मतलब फिर तो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। सजल की मुस्कुराती आवाज गूंजी थी। जी भाभी, सर जानते हैं अच्छे से। फिर तो फिक्र ही खत्म। ऐसे ही सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मुझे तुम लोगों का सर अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा लगा। सजल ने खुले दिल से तारीफ की थी। जी भाभी, ऐसा लगता है ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए। ईमान ने कहा।
तब नजरें बुखलाए हुए ज़हेब और समीर पर पड़ी, जो भागने जैसे अंदाज में अंदर आए, पर सामने नजर पड़ते दोनों के पाँव को ब्रेक लगी थी। समीर ज़हेब ने एक दूसरे को देखा, फिर सामने देखा। वो जाज़ब को हर जगह ढूंढ रहे थे, फिर सड़क घर पूरा देख लिया था, पर कॉल कर देखी, पर ना वो था ना इसकी गाड़ी। समीर ने इसके कमरे का जायजा लिया, जहाँ सब सामान मौजूद था सिवाय इसके और गाड़ी के। अब वो दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे जब फवाद साहब ने इन्हें फौरन पहुंचने का कहा था। अब सामने ज़रिश बुरहान को देख दोनों की आंखों में सवाल दर रहे थे। वजह साहब और फवाद इनके पास आए। बाबा, ये बेटा यही ठीक था, बुरहान ने हमें रुसवा होने से बचा लिया। जहाँ सब नहीं आया, फवाद साहब नढाल से बोले। ज़हेब को जहाँ खुशी हुई थी वहीं दुख भी हुआ था कि बुरहान किसी और को पसंद करता है। यूं अचानक ज़रिश की शादी होगी, न जाने वो कैसा रिएक्ट देगा। ज़हेब को खुद को तख्ता पाकर वो बिना किसी को देखे इसकी तरफ आया था। बुरहान, तुम ये कैसे? मुझे यासर ने बताया था कि तुम किसी को पसंद करते हो, फिर क्यों की शादी? वो सरगोशी में बोला था। बुरहान मुस्कुराया था, इसकी मुस्कुराहट में दर्द था, थकन थी, हारने का गम था। वो एक वीरान शख्स लग रहा था। ज़हेब के दिल को कुछ हुआ था जब आगे बढ़कर बुरहान ने गले लग गया था। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? वो इस वक्त एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहा था। ये पूछते हुए इसका दिल 100 टुकड़ों में तकसीम हुआ था। वजह नहीं थी। बुरहान ने शाने बेनियाज़ी से कंधे उचकाए थे। क्या तुम सारी जिंदगी रह लोगे? किस हवाले से पूछ रहे हो? साले बनकर या दोस्त बनकर? दोनों बनकर। वजह थी, पर दलील नहीं बची थी, न कोई वजाहत। बुरहान संजीदा सा बोला था। समीर को फवाद साहब सब कुछ बता रहे थे कि किस तरह बुरहान के मानने और फिर निकाह के लिए राजी हुआ। इसे अच्छा लगा था कि जाजा पहले ही शराफत से मान जाने पर इसे मशकूक लगा था। आज की हरकत पर इसे सख्त गुस्सा आया था। इसके आते ही मां ज़रिश के पास बैठी इसके कान में बताने लगी। ज़रिश, इसको तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे चाहते हैं वो ऐसे भी मिल जाता है। इसका चेहरा जो मुरझा गया था, ये सोचते ही अब वो बुरहान की बीवी है, फिर से खिल उठा था। एक खूबसूरत और शर्मीगी मुस्कुराहट लबों पर बिखरी थी। इसका दिल फिर से सपने बुनने लगा था। ज़रिश ने लर्जती पलकों की ओर से इस खुबरू को देखा था जो शुएब की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। दिल ने बीट मिस की थी और तवज्जो ईमान की तरफ हुई थी। अभी तो तुम मरने जैसी थी, एकदम चेहरे पर निखार आ गया। खैर तो है ना? ईमान मायने खेजी से बोली। इसे ज़रिश की सारी बातें और हालत समझ आ गई थी। ज़रिश खिलखिलाई थी। कल पूछूंगी तुमसे, मुझसे छुपाई इतनी बड़ी बात? ईमान आग बगोला होती इसके बाजू पर चित लगाती बोली थी। ज़रिश ने सर हिलाया। मैं भी तुम्हें बताना चाहती थी, पर कोई बात नहीं, अब कल तुम्हारी तफ्तीश करूंगी। ईमान ने आंखें घुमाई। कोई शक नहीं पुलिस वाले की बहन होने में, जाने मन। ज़रिश इसकी तरफ जरा सा झुककर ही बोली थी और मुस्कुराहट दबाई थी। तुम आज धुलन ना होती तो मैं तुम्हारा भुर्ता बनाकर इन डिशों में रख देती। ईमान चबाकर बोली थी। बुरहान की नजर अभी तक ईमान पर नहीं पड़ी थी। वो स्टेज की तरफ पीठ किए खड़ा था, अब इनसे बातें कर रहा था। जहाँ एक और अफराद यासर का इजाफा हुआ था। वो देर से आया था और इसके आने के ही ज़हेब ने सब बता दिया था। बीजी की नजरें निकाब किए इस लड़की पर टिकी थी। जब सजल पास आई और बीजी का तारुफ करवाया, ईमान भी खुशी से इनसे मिली थी। इनके दिल में ख्वाहिश जागी थी कि ये लड़की इनके अहमद की जिंदगी में आ जाए, इस बिगड़े शहजादे को सुधार दे। इसको ईमान बहुत पसंद आई थी। सजल ने बीजी का तारुफ अपनी ताई और शहला से भी करवाया था, जिनके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। फवाद साहब ने काफी मेहमानों से पूछा, पर ज़हेब और समीर ने सारी बात संभाल ली थी। जवाब साहब जहाँ दुखी और उदास थे, वहीं खुश भी थे। इस वक्त इनको अपने बेटे की कोई परवाह नहीं थी, जिसे इनकी इज्जत खराब करने में कोई कसर न छोड़ी थी। कुछ ही देर में रुखसी का शोर उठा। बुरहान, मेरी बहन का ख्याल रखना। ज़हेब ने काज से कहा कि बुरहान के दिल को कुछ हुआ। इसने बस जरा सा सर हिलाया था। ज़हेब ने कुरान पाक के साए तले अपनी बहन की रुखसी अपने दोस्त के साथ की और इससे इल्तिजा की जो हर भाई करता है। ज़हेब ने खुद ज़रिश को गाड़ी में बैठाया और इसके सर पर लब रखे, फिर बुरहान की तरफ मुड़कर इसको खुद में भींच लिया। वो कैसे अपने दोस्त की कुर्बानी भूल सकता था, पर ज़हेब अपने बाप से नाराज था। फवाद साहब वजाहत के गले मिले, इनकी आंखों में नमी थी। जब वजाहत ने तसल्ली दी, बीजी सबसे मिलकर ज़रिश के साथ बैक सीट पर बैठी। ज़रिश का दिल धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। इसने ख्वाब देखा था कि वो रुखसत होकर बुरहान के घर जाए। ख्वाब की ताबीर देखकर खुशी की इंतहा न रही थी। इनके बैठते बुरहान ने गाड़ी स्टार्ट करते ही फुल स्पीड में दौड़ाई थी। ये बुरहान की किस्मत खराब थी या अच्छी थी कि इसकी नजरें ईमान पर ना पड़ी थी। वो कुछ ही देर के लिए स्टेज पर गई थी, फिर वापस नीचे आ गई थी। सोमी के साथ बातें करती रही। ईमान सवाए सजल, ज़रिश और सरमीना बेगम से किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी।
अब सबको अपनी तरफ मतवज्जा देखकर वो जल्दी से स्टेज से उतर आई थी और सबकी एक्सरा करती नजरें अब इस नवाब पर टिकी थी। समीर ने सजल को देखा जो अपनी माँ के गले लगे आंसू बहा रही थी। इसको रोता देख सुहेब ने दोनों को साथ लगाया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इम्तिहान था जिसे वो पास कर गए, सब अच्छे से हो गया। जबकि जवाद साहब की तबीयत खराब होने पर शैला और इसकी माँ जरिश की रुखसती के फौरन बाद निकले थे। कुछ तवाफुक के बाद समीर सजल सोमी ईमान को लिए घर चला गया था। इसकी मायने खेज नजरें सजल के गिर्द खतरे की घंटियां बजा रही थी। वो नहीं जाना चाहती थी, पर अब अगर मना करती तो समीर की जुनूनी तबीयत से वाकिफ थी जो सबके बीच इसे बाहों में उठाकर ले जाता। पर इसकी एक न सुनता तो जी दोस्तों, बुरहान का क्या रिएक्शन होगा जब दुल्हन के रूप में देखेगा जरिश को।